how many of their workers have given their blood for this country. And I can say that not only about Assam and Punjab, I can say that about state after state after state. And I can say that not for 5 years, not for 10 years, I can say that for more than 100 years. So we don't need to explain what we did or didn't do over the last 70 years. The BJP under Narendra Modi ji has done in 2.5 years what we did not do in 70. Every single institution that we constructed, whether it is the RBI, whether it is the judiciary, whether it is the Election Commission, the BJP and the RSS and Narendra Modi have weakened. There is today no institution in this country that is respected. We have come here to speak about demonetization. And people say, well, demonetization was a bad decision. For the first time in our history, a Prime Minister of India is being ridiculed the world over. For the first time, it has never happened at this scale. Never before has every single economist of any repute said that the Prime Minister of India has taken such an incompetent and badly thought out decision. So we didn't do this over the last 70 years. The RBI governor, an institution that we respected, an institution that is the financial bedrock of this country, has been ridiculed. The position of the RBI governor has been ridiculed. And the reason is that the RSS and the BJP are under the impression that nobody's opinion in this country matters except their own. The demonetization decision was a personal decision of Mr. Narendra Modi. Today I read in the newspaper, the Prime Minister says that he is going to transform India. The Prime Minister needs to spend some time among the poor people of this country. The Prime Minister needs to go to the farmers of this country. The Prime Minister needs to go to the laborers of this country. The Prime Minister needs to ask himself why suddenly auto sales have fallen by 60%. The Prime Minister needs to ask himself why suddenly the Narega, which he criticized in Parliament, suddenly has so much demand. The Prime Minister needs to ask himself why people are suddenly running back into the villages instead of running to the cities looking for jobs. This is not the transformation India was looking for. The Prime Minister promised jobs. In 7 years, there has not been as much unemployment as there is today. So the Prime Minister jumps. He jumps from let's clean India, to let's do surgical strikes, to let's demonetize. He keeps jumping from one thing to another. And the people of India keep wondering, when are Achhe Din going to come? When are the good days going to come? Let me tell the people of India, Achhe Din are only going to come when the Congress party comes back to power in 2019. I am very happy and proud that all of you have stood up for the Congress idea, have shown the people of India exactly what this demonetization decision has cost them, have raised the voice of the people of India, because there is tremendous pain in India. Our friends in the media
I can't see them. Where are they? There they are. Our friends in the media these days are under certain constraints. You know, they are worried that maybe they shouldn't say too much. But in their hearts, they also understand exactly what is going on. And they come to me, it's not that they don't come to me, they come to me and they say, you know, we'd like to say certain things, but हवा बदल गई है, these days, बोला नहीं जाता है, phone call आ जाता है. So we understand their predicament, we understand their nervousness. अभी बोलूंगा भैया, बोलूंगा. We understand their nervousness, but we would also say to them that there is a responsibility that you have. There is a responsibility that you have in raising the pain that our people are feeling, the pain that people in the villages are feeling. And you mustn't shy away too much from that responsibility. हिंदी में बोलता हूं. ढाई साल पहले नरेंद्र मोदी जी आए, बड़े वायदे किए उन्होंने, कहा था कि हिंदुस्तान को साफ कर दूंगा, सफाई कर दूंगा, सबको झाड़ू पकड़ाया, कहा कि भैया ले झाड़ू, हिंदुस्तान की सफाई शुरू करो. फैशन था, 3-4 दिन चला. नरेंद्र मोदी जी ने भी झाड़ू लगाया और फिर भूल गए. चलो भैया हिंदुस्तान साफ हो गया, अब अगली चीज पे चलते हैं, अगली बात करते हैं. सफाई के बाद मैं भूल गया, शायद मेक इन इंडिया था. मेक इन इंडिया के बाद क्या था? क्या कनेक्ट इंडिया था. उसके बाद क्या था? स्टार्टअप इंडिया. उसके बाद क्या? फिर स्किल इंडिया, फिर थोड़ा सा योगा किया इंडिया गेट पे. मगर देखिए बात दिख जाती है. जो हम में और बीजेपी में, आरएसएस में फर्क मैं आपको बताता हूं. नहीं, मैं आपको बताता हूं. देखिए दिख जाता है, अगर आप ध्यान से देखें तो दिख जाता है. चीज छुपाई नहीं जा सकती है. अगर आपने देखा होगा, जब झाड़ू लग रहा था, बीजेपी के सब नेताओं ने झाड़ू गलत पकड़ा हुआ था. मोदी जी ने झाड़ू को ऐसे पकड़ा हुआ था. जब योगा की, बड़ा फैशन हुआ, बड़ा सुंदर लगा, मगर पद्मासन नहीं लगा. मैं नोटिस करता हूं, मैं बातें नोटिस करता हूं. बहुत सुंदर लग रहा था मगर पद्मासन नहीं हुआ. मैंने योगा किया था, थोड़ी देर की थी, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं. मगर जो योगा मुझे सिखा रहे थे, उन्होंने कहा था कि भैया देखो, जो योगा करता है वो पद्मासन कर सकता है, और जो पद्मासन नहीं करता वो योगा नहीं कर सकता. खैर वो दूसरी बात है. तो वहां से हम गए स्किल इंडिया, योगा, मेक इन इंडिया, टीच इंडिया, पता नहीं कहां कहां, और फिर अंत में डीमोनेटाइजेशन. मन की बात तो चलती जाती है, मगर फिर डीमोनेटाइजेशन, जिसको हिंदुस्तान के इकोनॉमिस्ट को छोड़ दो, जिसको दुनिया के सब इकोनॉमिस्ट ने, एक नहीं झूठा, जिस इकोनॉमिस्ट ने डीमोनेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, सिंधिया जी बैठे हैं यहां पे, आपको याद होगा, सिंधिया जी आपको याद होगा, जब हिंदुस्तान टाइम्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था,
वो हमारे सामने आए थे और उन्होंने बताया कि जो मेरी थियरी थी वो आपके प्रधानमंत्री समझे ही नहीं। मुस्कुरा रहे हैं। जिसने कॉन्सेप्ट डिमोनेटाइजेशन का दुनिया को दिया, उसने कहा कि भैया यहां तो डिमोनेटाइजेशन किया ही नहीं इन्होंने। उसकी पूरी सोच है कि हाई वैल्यू के जो नोट्स हैं, बड़े नोट्स हैं, उनको आप निकाल दो, और यहां पे 2000 रुपए का नोट दे दिया। डिमोनेटाइजेशन एक बहाना है। नरेंद्र मोदी जी को पता लग रहा है कि वो योगा के पीछे, मेक इन इंडिया के पीछे, स्किल इंडिया के पीछे नहीं छुप पाएंगे। और जब उनको घबराहट हुई कि अब मैं कहां छुपूं, तो उन्होंने अपने जो होममेड इकोनॉमिस्ट है, क्या नाम है उनके, क्या नाम है उनका, बाबा रामदेव, और ये भोगले जी हैं, क्या नाम है पता नहीं मुझे, भोगले जी हैं, उनके पीछे जाके वो छुपने की कोशिश की। और हुआ क्या कि हिंदुस्तान की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी जो है उसको उन्होंने तोड़ दिया। मैंने अंग्रेजी में बोला कि आजकल हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, जैसे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये खुल के बोलते थे, दिल खोल के बोलते थे। आजकल पता नहीं क्यों ये दिल से खोलकर नहीं बोलते हैं। मेरे पास आते हैं, कहते हैं, शेम तो नहीं कहते हैं, मगर आते हैं, मुझे कहते हैं कि भैया हाँ, डर लगता है ये नौकरी चली जाएगी, फोन कॉल आ जाएगा, तो आप हमारी बात समझ जाइए। हम आपकी बात समझते हैं और हम आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मगर आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 60% कम गाड़ियां बिकी हैं, 60%। 16 साल पहले की स्थिति पे आज हम पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए अपने आप से, अपने से, कि 60% ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स कम क्यों हुई। एक तरफ वो कहते हैं मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर मेक इन इंडिया का फलक्रम है, सेंटर है। नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए कि मनरेगा में इतना डिमांड क्यों बढ़ गया। वही कार्यक्रम जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, पूरी दुनिया को कहा था कि भैया देखो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मजदूरों से गड्ढा खुदवाते हैं। उनको पूछना चाहिए कि आज मनरेगा का डिमांड इतना क्यों बढ़ रहा है। उनको पूछना चाहिए कि भैया जो पहले लोग शहरों में आते थे, लोग सपना देखकर बंबई जाते थे, बेंगलोर जाते थे, दिल्ली आते थे, वो दूसरी ओर क्यों दौड़ रहे हैं। ये सवाल नरेंद्र मोदी जी को पूछने चाहिए। ये हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, इनको पूछने चाहिए। हम तो पूछते हैं और हम पूछेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो हमने 70 साल में नहीं किया, जो हमने 70 साल में इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट की, जुडिशरी की रिस्पेक्ट की,
आरबीआई की रिस्पेक्ट की, प्रेस की रिस्पेक्ट की, शायद बहुत ज्यादा की। शायद, मगर ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस ने 2.5 साल में बंद कर दिया। और दुख की बात है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की आत्मा है, हिंदुस्तान का स्पिरिट है। और ये लोग जो हमारे धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, यही लोग इस देश की आत्मा को खत्म करने में लगे हुए हैं। आरबीआई हिंदुस्तान के लोगों का एक्सप्रेशन है। जब एक जज कोर्ट हाउस में बैठता है, वो हिंदुस्तान की स्पिरिट, हिंदुस्तान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। जब एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, वो हिंदुस्तान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप 3-4 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए, हंसते हुए, गोयल जी, आपके जेब में जो 500 रुपए के नोट थे, 1000 रुपए के नोट थे, उनको कागज बना दिया। उनको कागज बना दिया, कहा कि देखो, ये जो तुम्हारी कमाई है, तुम्हारा जो खून पसीना है, इस खून पसीने को नरेंद्र मोदी 1 मिनट में कागज में बदल सकता है। तुम लोग कौन हो? तुम में क्या है? अब देश को सिर्फ नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत जी चलाएंगे। इसलिए हम यहां खड़े हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि नहीं, हम हिंदुस्तान की जो आत्मा है, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम बचाकर रखेंगे। हिंदुस्तान की जो आवाज है, उसको हम बचाकर रखेंगे। और ये जो सोच है इन लोगों की, नरेंद्र मोदी जी की, मोहन भागवत जी की, कि हिंदुस्तान को सिर्फ 2-3 लोग चला सकते हैं, इस सोच का हम पूरा विरोध करेंगे और इनको हम हरा के दिखाएंगे। मैंने कहा था कि लंबा भाषण नहीं करूंगा, तो अब मैं यहां अब रुकना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को, हाँ, अब शाम को बोलूंगा। थैंक यू।